Okay. Good morning, everyone. So we will be starting with the second session of accounting equation, and in this session, we will be doing some more questions on accounting equation. I hope whatever that has been taught is very much clear to you. So let's start with the next question. So please follow the transaction that I am going to write on the board now. Okay. So let's start. Okay. So accounting equation, we have asset. We have to write this accounting equation every time that we are preparing one, right? So it is assets is equals to liability plus capital. इसको लिखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं लिखेंगे ऊपर और डायरेक्टली शुरू कर देंगे ट्रांजैक्शंस को डील करना, तो आपको मार्क्स यहाँ पर इसको नहीं लिखने की वजह से एक नंबर आपके कट जाएंगे, राइट? क्योंकि आपने असेट्स लिख दिया है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, व्हाटएवर इट इज, राइट? लाइबिलिटीज लिख दी, कैपिटल लिख दिया, मगर ऊपर उसके हेडिंग नहीं दी एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल की. सो हाउ विल द पर्सन डिटरमाइन कि आपने जो नीचे लिखा है वो किस कैटेगरी का पार्ट है, राइट? तो इसीलिए आपको पहले ये इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले ऊपर, उसके बाद आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, नॉट अ वेरी स्ट्रेट लाइन. Try to draw one more line for you. Okay, so please follow the transaction that I'm going to tell you now. Okay, so let's start with this question. So this question is saying business started with cash, right? If we are starting the business and we are starting it for cash, cash is an asset, right? So asset is going to increase. So let's write down the transaction here. First transaction is business started with cash. So cash is coming in. So cash is coming in. It is 1,75,000 that you are contributing to your capital through cash. So plus 1,75,000. And capital may be add 1,75,000. This is our new equation. Okay, I hope this is clear. सबको ये हम already कर चुके हैं पिछले questions में भी, so there should be no doubt in this. Okay, so let's follow the next transaction that we have here. Is purchase goods from Rohit, rupees 50,000. Purchase goods from Rohit. तो आपने goods purchase किए और आपने रोहित से purchase किए हैं. यहाँ पर word cash कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए ये credit transaction है. So we have purchased goods from Rohit. So let's write it down. Purchased goods, right? रोहित से purchase किए हैं, so रोहित बनेगा हमारा creditor, right? So write it down, creditor over here. रोहित लिखा मैंने और उसके नीचे लिख दिया creditor. So we have purchased goods. So stock बना लीजिए या goods का category बना लीजिए, and we have purchased goods of 50,000 rupees. तो add कीजिए यहाँ पर 50,000. रोहित के अंदर भी 50,000 add हो जाएगा, right? So this solves our transaction over here. यहाँ पर cash में कोई change नहीं हुआ, so cash will remain 1,75,000 only plus 50,000, right? As the stock that we have got, that we have purchased, then we are purchasing it on credit. तो credit के अंदर, okay, pages, this page number is 6.25. This is, I'll tell you the exercise number, the question which we are doing from the exercise. This is question number 5 from the exercise. I don't know what is the page number in your book, but you have to see that. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. That you are doing question number 5, okay? And Samrat, you are saying that can I write bigger? Okay, bache, if I write bigger, we would not be able to accommodate all the things in one page. Okay, then I would be required to rub it off and then do it again. Can you all see it now? Is it a little better? Is it a little better? I will just. मैम आपका नेट ढंग से नहीं आ रहा है. Okay. और मैं जान सकती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ ये?
कौन बच्चा है ये? नाम बताइए बच्चे अपना. Who am I talking to? ओके, नाम गायब हो गया, बस बच्चे की आवाज आ रही है. ओके, वंडरफुल इट इज. चलिए, तो एक काम करते हैं कि आई होप अब सबको साफ साफ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है. ओके ओके. Okay, is this one better now? Okay, thank you Anushri for guiding me. Okay, Samrat, Anushri, बच्चे अब क्या आपको दिख रहा है? खुशी, अंजलि, anybody? Is there still a visibility issue? या आप दिखना शुरू हुआ है? देखिए, आपको क्या दिख रहा है, दिखने के लिए तो मैं आपको फोटो भी भेज सकती हूँ इस बोर्ड की खींच के, मगर मैं आपको कहूंगी कि ओके, अभी भी साफ नहीं दिख रहा है. ओके ओके, इज दिस बेटर नाउ? ओके, ओके, इट इज नॉट विजिबल प्रॉपरली. ओके, एक काम करें, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है यहाँ पर. व्हाट वी विल डू राइट नाउ इज okay, maybe there is a low signal strength that may be possible. Okay, एक काम करते हैं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं clearly? Is my voice audible to you all? Okay, so you all are able to hear me clearly. Okay, अब जो मैं बोलूंगी, right, जो मैं लिख भी रही हूँ मगर आपको इतना properly visible नहीं है, right, तो जो मैं बोल रही हूँ उसे बहुत ध्यान से फोकस कीजिए, सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ और उसे वैसे ही लिखिए. For the reference purpose, you can always look at the board, right? I'll repeat if there will be any requirement of such thing. But मुझे बस ध्यान से सुनिए, मैं हर एक चीज जो लिख रही हूँ बोर्ड पे उसे मैं बहुत साफ साफ आपके लिए बोलूंगी, right? आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आप मुझे चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं, I'll repeat it for you, right? Please let me know. और जो मैं कर रही हूँ वही चीज आप अपनी कॉपी में करिए, आपको आपका सोल्यूशन खुद तैयार मिल जाएगा. ठीक है? So instead of just looking at the board and copying it from there, better would be you focus on my voice, whatever that I'm saying, follow the instructions and do it likewise. Okay? So let's start this question again from the very first transaction that we have. The first transaction is saying business is started with the cash amounting to rupees 1,75,000, right? तो अगर आपने बिजनेस 1,75,000 से शुरू किया है तो कैश इज एन एसेट व्हिच इज कमिंग इन. तो कैश हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1,75,000 एंड प्लस दिस कैश इज गेटिंग कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल. तो कैपिटल की जो कैटेगरी है वहां भी आप 1,75,000 रुपीज ऐड कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज दैट मींस द फर्स्ट ट्रांजैक्शन का जब एंड हो रहा है तो हमारे पास टोटल है डेबिट साइड का 1,75,000 और क्रेडिट साइड का भी टोटल है 1,75,000. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज्ड गुड्स. ओके, सो इफ यू आर परचेजिंग गुड्स दैट मींस वी आर एडिंग ऑन द स्टॉक. सो स्टॉक इज आवर एसेट. तो गुड्स या स्टॉक का नाम लिखकर आप ऐड कीजिए कितने के गुड्स खरीदे हैं. यू हैव परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 50,000, राइट? तो 50,000 के आपने गुड्स खरीदे हैं, ऐड कीजिए 50,000 रुपीज गुड्स के अंदर या स्टॉक के अंदर एसेट साइड पर, राइट? और क्योंकि आपने ये स्टॉक खरीदा है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में परचेज करने की वजह से वी विल हैव अनदर पार्टी विद अस दैट इज क्रेडिटर, और उस क्रेडिटर का नाम है रोहित, राइट? तो लायबिलिटी के अंडर आप लिखेंगे क्रेडिटर और उसका नाम लिखेंगे रोहित और ऐड कीजिए वहां पर अमाउंट 50,000 रुपीज. ओके, so 50,000 will actually help you to get the total of the liability side. और asset side में अब हमारा टोटल है 1,75,000 plus 50,000.
that makes it 2,25,000, right? और क्रेडिट साइड पे टोटल क्या है 50,000 प्लस नो चेंज इन कैपिटल, so 1,75,000 will get brought down the way it was earlier. तो अब टोटल यहाँ का भी हो गया है आपका 2,25,000. I hope this is very much clear and visible to all. Okay, next let's move on to the next transaction. Are you all able to follow the things that I am saying? If you can all hear me clearly, क्या आप जैसा मैं बता रही हूँ वो आप कर पा रहे हैं, क्या आप लिख पा रहे हैं उसे? Can you all follow it? Okay, wonderful it is then. Okay, let's move further. Okay, Riddhi is saying no ma'am. Riddhi bache, I would suggest you just focus a little more and you will be able to understand everything, right? Don't worry, it is not something which we are doing and which we are not knowing at all, right? आपने अगर कल का क्वेश्चन किया है तो आपको ये फॉलो करना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए. आगे बढ़ेंगे और चलेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर. थर्ड ट्रांजैक्शन कह रहा है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, sold goods on credit to Manish. Okay, there is one thing that I have just received. Samrat, आप पूछ रहे हैं, do we need to write the new transaction after every transaction or can we write the final equation at the end instead? No, you have to write the new equation, whatever is getting framed after every transaction is taking place. और वो इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए फाइनल इक्वेशन आपकी गलत हो जाती है मगर बीच में कहीं आप कहीं तक सही हो, राइट? तो क्या होगा कि जहां तक आपने सही किया होगा ट्रीटमेंट, उस इक्वेशन तक के आपको मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आप फाइनल इक्वेशन तक निकालेंगे डायरेक्टली, बीच में कोई भी न्यू इक्वेशन नहीं बनाएंगे, मतलब बीच में इक्वेशन जो बन रही है आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, इफ यू विल नॉट मेक इट देन वो मार्क्स डायरेक्टली जीरो हो जाएंगे. और आपको पता होना चाहिए, और मैं फिर से बता रही हूँ कि अकाउंट्स के अंदर सारी मार्किंग आपकी स्टेप वाइज होती है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, राइट, कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको आपको हर स्टेप को क्लोज करना है. So when we are adding any transaction, it means when we are treating any transaction, when we are writing that new equation, right? So in that new equation, we are actually closing that transaction over there, right? Okay. Keshav Purohit, you have raised your hand. बच्चे क्या पूछना है? क्या पूछना चाह रहे हैं? OP in the chat, I couldn't understand this. Can you please elaborate on this? Meanwhile, we'll move on to the next transaction. Okay. So the next transaction is saying sold goods on credit to Manish costing 17,500 and we have sold it to him for rupees 20,000, right? Goods are being sold to Manish worth rupees 17,500 and we have sold it for rupees 20,000. अब मनीष को बेचा है, राइट? मतलब कहीं कैश नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ. सो अगेन दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो मनीष को आप जिसको क्रेडिट में बेच रहे हैं, what will that party be called? That party will be known as debtor, right? तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे debtor एक और party which is whose name is Manish, and you are selling him the goods worth rupees 17,500 for rupees 20,000. तो मनीष अब आपको कितना लायबल है पे करने के लिए? मनीष विल बी पेइंग यू 20,000. तो 20,000 उसका ऐड कर लिया आपने, राइट? स्टॉक, क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं उसको, 50,000 का स्टॉक आपके पास अवेलेबल था एज पर द सेकेंड ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन. तो अब आपने 17,500 का स्टॉक बेच दिया है, राइट? माइनस कीजिए 17,500. सो दिस विल बी I suppose 500 and this is 9, so this is 2, 4 and 3. 32,500 का स्टॉक आपके पास अब बचेगा. I hope everybody please check. 17,500 का स्टॉक माइनस करके 50,000 का स्टॉक आपके पास था अवेलेबल. 17,500 माइनस किया, कितना स्टॉक बचना चाहिए? 32,500 का स्टॉक बचना चाहिए. और मनीष अब एक नया हमारे पास असेट ऐड हो गया है, who is a debtor, and उसका डेटर में जो अमाउंट ड्यू आ रहा है वो आ रहा है 20,000 रुपीज, राइट? इसके अलावा हमने 17,500 की चीज को बेचा है 20,000 रुपए में, मतलब हमने 2,500 के प्रॉफिट पे सेल्स की है, राइट? तो ये प्रॉफिट कहाँ ऐड होना चाहिए? ये ऐड होना चाहिए कैपिटल में. तो लेकर चलते हैं इसे कैपिटल के अंदर और ऐड करते हैं 2,500 रुपीज, राइट? सो 2,500 प्लस
1,75,000 capital already available था आपके पास. So now this is 1,77,500. Okay, I hope you all are getting the same amount of capital balance. That means 1,75,000 capital was available. 2,500 का profit हुआ है. So the new balance of capital is 1,77,500. Rohit, as a liability, there is no change in it. So 50,000 as it is carry forward करके ले आइए. कैश में भी कोई चेंज नहीं आया है, सो कैश के अंदर भी 1,75,000 आपका कैरी फॉरवर्ड होके आ गया. सो व्हाट इज दैट न्यू इक्वेशन सेइंग? सो न्यू इक्वेशन इज we have cash 1,75,000, stock is available with us which is 32,500, debtor is 20,000, equals to liability में है हमारे पास रोहित who is the creditor, the balance is 50,000 and capital balance is 1,77,500. I hope you are all following it, right? आप सबका बैलेंस भी इतना ही आ रहा है. अगर यही आ रहा है तो आप सब सही है, और अगर आप नहीं आ रहा है आपका ये बैलेंस तो ये कहीं गलती हो रही है. Everybody, please let me know your doubt, right? आगे हम चलेंगे इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन पे, and we'll be moving on to the fourth transaction. Okay, so let's move on to the fourth okay, this is the fourth transaction we have. So let me write down the third transaction first. Okay, so third transaction was sold goods to Manish. Now let's move on to the fourth transaction. Fourth transaction is saying purchased furniture for office use, right? So purchased furniture for office use is saying, just give me a second, class. Okay. प्रांशी बच्चे आपने एक डाउट पूछा है. लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट डाउट. ओके ma'am, if we are not given in the question that how much profit or loss is incurred, then we will assume that the goods are sold on cost price. Yes, मतलब अगर आपको, that's a wonderful question प्रांशी, I must congratulate you. आप अच्छा सोच रहे हैं और आगे बढ़कर सोच रहे हैं. That's a wonderful thought that you have given to the question. So if the transaction, यहाँ पर हमको दिख रहा था कि 17,500 के गुड्स हमने 20,000 में बेचे, तो हमको दिखा कि वो प्रॉफिट था. या अगर इसका उल्टा हो जाता, यानी कि 20,000 के गुड्स अगर मैंने 17,500 में बेचे होते तो वो मुझे लॉस होता, तो मैं अकॉर्डिंगली कैपिटल में माइनस करती 2,500 को. अब अगर ये दोनों चीजें नहीं है गिवन, मतलब मुझे सिर्फ एक फिगर दे दी जाती है दैट गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹20,000. अब यहाँ पर अगर मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं बताई गई है, इसका मतलब है देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. तो आप उतना ही अमाउंट, जितने अमाउंट को आपने बेचा है उतने ही को ही आप माइनस कीजिए स्टॉक में से, और उतने ही अमाउंट को आप क्रिएट कीजिए डेटर को, राइट? सो दैट केस इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. तो कैपिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी. प्रांशी बच्चे, आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट. इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क मोर ऑन दिस, please write it down in the chat box. Okay, let me move further and let me go for the next equation, next transaction that we have here. So the next transaction is saying purchased furniture for office use 10,000 rupees. Purchased furniture for office use कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, कैश भी नहीं लिखा है और किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिखा है. तो अगर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा होता है कि कहाँ से परचेज किया है, तो हम पहले ही जान चुके हैं इस बात को कि इसका मतलब होता है कि हमने उसे कैश में परचेज किया है. तो एवरीबडी परचेज फर्नीचर, राइट? तो अब हमारे पास फर्नीचर एक नया असेट बन रहा है. सो let's write it down, and we have purchased furniture for rupees how much? 10,000. 10,000 फर्नीचर का एक नया एसेट क्रिएट कीजिए, राइट? और क्योंकि आपने परचेज किया है फर्नीचर, तो इसका मतलब है पार्टी का नाम नहीं लिखे होने की वजह से दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कैश ट्रांजैक्शन. तो कैश में से आप माइनस कर दीजिए 10,000 को. So फर्नीचर में ऐड कीजिए 10,000, कैश में माइनस कीजिए 10,000. Now the new balance of cash that we have is 1,65,000. So the new equation is cash 1,65,000. There is no change in stock, so stock will remain the same, 32,500, plus there is no change in debtor also, so he will also remain the same, 20,000, plus
10,000 आपके फर्नीचर में ऐड हो रहा है, तो फर्नीचर को शो कर दीजिए एज 10,000 इक्वल्स टू लाइबिलिटी विच इज अगेन नो चेंज, 50,000 ही अपीयर हो रहा है, और कैपिटल में भी देयर इज नो चेंज, सो इट इज 1,77,500 ओनली. आई होप we are all following the transactions very well. Okay, one more doubt that I have received. When the transaction is not mentioned, we will sometimes take it as cash and sometimes as credit. No बच्चे, खुशी, ऐसा नहीं होता. देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपने कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन के टर्म में और आपने फॉलो किया उसको, तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी ट्रांजैक्शन में वर्ड कैश लिखा होता है या फिर कोई भी पार्टी का नाम नहीं लिखा होता है, तब आप उसे कैश ट्रीट करते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, राइट? इफ इट इज सेइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, it's a cash transaction. Next transaction is purchase goods. Nothing is written, no cash, no credit, nothing is written. It is a cash transaction. Next transaction, purchase goods from in cash from UV Limited. It's a cash transaction, right? क्योंकि आपको पार्टी का नाम भी लिखा है मगर ये भी मेंशन किया गया है कि इट हैज बीन परचेज्ड इन कैश, राइट? सो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम यूवी लिमिटेड. Nothing is mentioned as cash. It's a credit transaction, right? Purchase goods on credit. It's a credit transaction. तो credit transaction basically कब होता है? जब आपको पार्टी का नाम लिखा होता है और word cash नहीं यूज हुआ, या फिर सिर्फ पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो वो credit transaction है, या फिर जब आपने ट्रांजैक्शन की और उसके आगे वर्ड क्रेडिट लिख दिया गया है तब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है. इसके अलावा हर केस में आपकी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन ही रहेगी. ये आप अच्छी तरह से याद रखिए, राइट? ये अजम्पशन नहीं है, ये आपसे ये ट्रांजैक्शन यही बताना चाह रहा है कि उसका ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, मतलब उसको कैसे ट्रीट किया गया है, कैश में या क्रेडिट में. If you ever will find that I have treated it contradictory, always you can ask me a question, right? But I hope I am treating it the way it is supposed to be treated. Okay, so this transaction was saying cash, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज. पार्टी का नाम नहीं लिखा था, राइट? और वर्ड कैश भी नहीं लिखा था, तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कि ये कैश ट्रांजैक्शन ही है. इसीलिए मैंने फर्नीचर एज अ कैश, फर्नीचर एज एन एसेट ऐड किया 10,000 रुपीज का, और कैश में से मैंने 10,000 रुपीज माइनस कर दिए. ओके, आई होप खुशी दिस हैज आंसर्ड योर डाउट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सेइंग कैश पेड टू रोहित in full settlement 48,500. अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि आपने जो कैश पे किया है रोहित को, वो पे किया है 48,500. रोहित को कितना पे करना था? 50,000 रुपीज. आपने पे कितना किया? 48,500. तो कैश में से राइट डाउन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू रोहित. हु इज रोहित? रोहित इज अ क्रेडिटर टू अस. ओके, ध्यान से देखिए, दिस इज अ न्यू ट्रांजैक्शन दैट वी आर डूइंग. ये ट्रांजैक्शन आपने कल अपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं की थी. ये ट्रांजैक्शन ध्यान से समझिए इसे. ओके, सो वी आर पेइंग कैश टू रोहित. हाउ मच वी आर पेइंग? 48,500. तो कैश कितना जाएगा अपने पास से? 48,500, राइट? वी हैव गॉट अ बैलेंस ऑफ 1,65,000. उसके अंदर से 48,500 माइनस कर दीजिए. Let me check what is the balance that we are going to get. It will be 1,16,500. Correct me if the calculation is wrong. Okay, so cash में से आप minus कीजिए 48,500 because this is what we are paying in cash to Rohit. So cash minus कीजिए. अमाउंट 1,65,000 कैश आपके पास अवेलेबल था, 48,500 आपने माइनस कर दिया. सो द रिमेनिंग कैश व्हिच इज लेफ्ट विद अस इज 1,16,500. ओके, सो दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग. देन आपने रोहित को पे किया. कितना पे किया? 48,500, मतलब कम पे किया. तो जब आप कम पे कर रहे हैं और आपकी लायबिलिटी ज्यादा की थी, तो ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, राइट? दिस मींस दिस इज अ डिस्काउंट दैट यू आर receiving on the payment that you are making to your creditor. तो ये जो मुझे benefit मिल रहा है, इससे मेरा profit level क्या होगा? The profit level will increase. कितने से?
50,000 की पेमेंट करनी थी, पेमेंट की है सिर्फ मैंने 48,500 की, यानी कि मैंने 1,500 रुपए की पेमेंट कम की है. So that 1,500 is my income. It will add to my profit, right? So capital में 1,500 add कर दीजिए. So the new balance of capital is 1,79,000, right? और रोहित जो आपने पे किया है उसको अपना अमाउंट वो पे किया है आपने, तो रोहित का अमाउंट अब आपने फुल्ली सेटल कर दिया है, मतलब अब रोहित को फर्दर कोई भी पेमेंट नहीं होगा. इसीलिए जब आप रोहित में से माइनस करेंगे सो यू विल डू कंप्लीट 50,000 डिडक्शन, यानी कि रोहित का अकाउंट अब 0 हो जाएगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? इफ दिस इज नॉट क्लियर लेट मी रिपीट इट फॉर यू, राइट? ओके, ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या ट्रांजैक्शन बता रही हूँ. एवरीबडी प्लीज पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ओवर दिस because this is a very important transaction based on which you are going to get questions today. Listen to me very carefully. Okay, cash is being paid to Rohit, right? अब यहाँ पर बताया गया है, हमको पहले से पता था कि रोहित का जो अकाउंट है वो 50,000 का है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं. Out of that 50,000 it is being said that we are paying Rohit 48,500. तो 48,500 ही रुपीस हमारे कैश में से जा रहे हैं. सबसे पहले तो कैश में से आप माइनस कीजिए कितना, 48,500 रुपीज, राइट? ये आपने माइनस किया. 1,65,000 का कैश अवेलेबल था हमारे पास. लास्ट इक्वेशन को देखिए, उसमें से माइनस कीजिए 48,500. सो द न्यू कैश व्हिच इज अवेलेबल विद अस इज 1,16,500. ओके, अब हमने रोहित को, रोहित इज अ लायबिलिटी, इज एन ऑब्लिगेशन, पे करना था 50,000, पे किया 48,500, मतलब हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है. इफ द डिस्काउंट इज गेटिंग रिसीव्ड सो दैट मीन्स 1,500 is the profit, right? So 1,500 is the profit and the income that we have received. Add कीजिए कैपिटल में, ओके? और क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपकी अकाउंट को अब क्लोज किया जा रहा है, इसके बियॉन्ड कोई भी पेमेंट नहीं होगी, राइट? अगर यहाँ पे ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता कि आपने पे किया रोहित को 48,500 और 1,500 जो बचे हैं वो भी आप पे करेंगे आगे जाकर, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि यूज किया गया वर्ड फुल सेटलमेंट. सो फुल सेटलमेंट इन शॉर्ट वी कैन से इट इज फुल एंड फाइनल, यानी कि 50,000 के अगेंस्ट आपने 48,500 पे कर दिया है और उसके बियॉन्ड अब पे नहीं किया जाएगा, राइट? तो इसीलिए रोहित का अकाउंट आप पूरा का पूरा 0 करेंगे. रोहित के अकाउंट में से माइनस करेंगे क्या, 50,000 रुपीज, और अमाउंट कीजिए 0, यानी कि रोहित को अब कुछ भी और पेमेंट नहीं की जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टू द टोटल ऑफ दिस न्यू ट्रांजैक्शन. सो न्यू इक्वेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज सेइंग 1,16,500 rupees cash, no change in stock, so stock is 32,500 rupees as on date, plus 20,000 is my debtor Manish, plus 10,000 is my furniture. Balance is equals to 0 is your balance for the creditor, so that means creditor अब exist नहीं करते हैं, and 1,79,000 is the balance of your capital account. Okay. Okay, Samrat, आपने पूछा full settlement का question, मैंने आपको बता दिया. So full settlement means that you have paid the amount to the creditor and now no longer you will be paying any other amount to the creditor. So 48,500 के को आपने जो पे किया है उससे आपने 50,000 का अकाउंट सेटल कर दिया, राइट? इसीलिए कैश जो जा रहा है आपके पास से वो जा रहा है 48,500 एंड दैट इज व्हाई कैश में से हम 48,500 ही माइनस करेंगे. और जो हमारा क्रेडिटर था रोहित ही था, यस. सो रोहित जो क्रेडिटर था उसके अकाउंट से आप माइनस कीजिए पूरे के पूरे 50,000 because we have paid it in full and final settlement. That means no longer we are going to pay any amount which is due to him, right? And 1,500 क्योंकि हमने कम पे किया है तो वो 1,500 हमारे लिए हुआ discount received, and discount received is an income. So add it in the capital. Okay. Okay, I hope I have answered all your doubts, Samrat. Next transaction पे चलते हैं. And everybody else, I hope the transaction is very well clear to all. Let's move on to the next transaction that we have. So next transaction is cash received from Manish. Who was Manish? If you all can see here, Manish was our
डेटर, राइट, और कितना रिसीव किया आपने उससे, आपने रिसीव किया 20,000। अब यहाँ पे क्योंकि आप मनीष से पूरे 20,000 रिसीव कर रहे हैं, कितना ड्यू था आपको, 20,000 which you are receiving in full settlement। तो अब जब 20 ही ड्यू है और 20 ही रिसीव कर रहे हैं, तो आपका जो मनीष का अकाउंट है, जो डेटर का अकाउंट है, वो क्या हो जाएगा, अब वो जीरो हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा होता कि मनीष का अकाउंट दिख रहा था 20,000 का, मगर मनीष से मिले मुझे 18,000 रुपए, तो आप क्या करते, आपके कैश में ऐड होता 18,000, मनीष को आप पूरा जीरो कर देते, मतलब मनीष में से आप माइनस कर देते 20,000 को, और 2,000 रुपए क्योंकि आपने कम रिसीव किए होते, तो वो होता आपका डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या है, ये मेरे लिए लॉस है, तो कैपिटल में से आप 2,000 रुपए को माइनस कर देते, अगर ऐसा होता तो, राइट। मगर ट्रांजैक्शन हमें क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन हमें कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। What was the cash which was due to Manish? It was 20,000 only। जीरो कीजिए उसका अकाउंट, राइट, और हमको रिसीव कितना हो रहा है कैश, 20,000। सो ऐड कीजिए कैश में, सो कैश रिसीव्ड फ्रॉम Manish, this is our sixth transaction। Okay, so the new balance of cash would be it is 1,16,500, so now it will be 1,36,500। I hope everybody is getting the same balance, plus 32,500 is my stock, the balance of debtor Manish is zero now, right, so it will be zero, and furniture नो चेंज, 10,000 हमारे पास आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स भी हमारे पास जीरो है, और टोटल बैलेंस जो हमारे पास अपने कैपिटल अकाउंट का आ रहा है, इट इज 1,79,000, राइट, नो चेंज इन कैपिटल ऑल्सो। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रेंट पेड, राइट, यू आर पेइंग रेंट इज एन एक्सपेंस। सबको याद है ये तो रेंट पेड कैसे ट्रीट करते हैं। So seventh transaction is rent paid. How much are we paying as rent? So rent is getting paid as 1,000 rupees. So it's an expense. तो rent जब आप पे करेंगे, कैश में से माइनस कीजिए 1,000 rupees. So the new amount of cash is 1,35,500, और कैपिटल में से भी माइनस कीजिए 1,000 rupees. So the new balance of capital is 1,78,000. Okay, no change in any other account, so सबको ऐसे ही carry forward करके ले आइए, right, so there is no change, so let it be the same। So the new equation which we have formed is 1,35,500 as cash, 32,500 as stock, zero for our debtor Manish, फर्नीचर 10,000 है, क्रेडिटर आपका रोहित भी जीरो हो चुका है, और कैपिटल का बैलेंस है 1,78,000। The total of debit and credit side will be 1,78,000, and that is the answer of this equation. Now let's move on to the last equation. Cash withdrew for personal use 3,000, right? So let's do this transaction. Cash withdrew for personal use. अगर आप personal use के लिए cash withdrew कर रहे हैं, so that means it is drawings, right? And how much is my drawings? The drawings is rupees 3,000। तो 3,000 आपने कैश विड्रॉ किया है, तो कैश में से माइनस कीजिए 3,000 रुपीज को। So the new balance of cash is 1,32,500 now, right? And drawings है ये आपके लिए, तो कैपिटल में से भी माइनस कीजिए 3,000 को, and the new balance of capital is 1,75,000 now, right? No change in any other account, so it will all be carried forward in the same amount that was there, right? So let's check. So the final equation that we have here in the answer, right? That means, okay, do we need to, खुशी आपने पूछा, do we need to show zero in the new equation? No, कोई जरूरत नहीं होती है, जीरो आप जहां आ जाता है वहीं उसको छोड़ दीजिए। मैं जीरो इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको याद रहे कि ये जीरो हो चुका है, मगर आप जीरो को कैरी फॉरवर्ड करके मत लाइए, पीछे ही छोड़ दीजिए। That's completely all right. Okay, so the final equation that we have for this question is, please check everybody. It is cash 1,32,500, stock 32,500, furniture 10,000, and capital is 1,75,000. I hope everybody has got the answer. Yes, Aditi, you have some doubt?
बच्चे please write it down. Anybody having any doubt, please write it down in the chat box. See, we have completed this one question today, right? I will be sending you some more question. Drawing is an asset. No, Aditi, drawing is not an asset. Drawing को हम डेबिट जरूर करते हैं. वो इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि वो कैपिटल में से माइनस होता है. कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? Credit, right? So we have to debit the drawings because it is a reduction from the capital. सौरभ आपने पूछा है, do we need to reconnect? बच्चे नहीं, आज हम यहीं पे finish करेंगे. I'll be sending you the assignment based on this, right? Everybody, please do it. And anyone who is not able to do any transaction, we will solve it tomorrow in the class. Okay? Everybody, please ensure tomorrow we are going to have a little in the class, right? हम उसको दोबारा थोड़ा continue करेंगे and कल हम इस chapter को finish करेंगे. So we'll be getting lot of assignments. Do not